بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 کے دن برطانوی راج سے آزادی کے بعد پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصوں نے آزادی کا سفر ایک ساتھ شروع کیا۔ تاہم دونوں حصوں کے درمیان اگلے 10 سے 12 برس میں سماجی اور معاشرتی فرق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس بارے میں جی ڈبلیو چودھری اپنی تصنیف لاسٹ ڈیز آف یونائٹڈ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 1960 میں مغربی پاکستان کی فی کس آمدنی مشرقی پاکستان کے باسیوں کی فی کس آمدنی سے 32% زائد تھی، اور اگلے 10 سال میں یہ فرق 81% تک چلا گیا۔ واضح رہے جی ڈبلیو چودھری پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کی حکومت میں وزیر بھی رہے تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں معرض وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشی اشاریوں میں بہت زیادہ فرق تھا، جس میں ملک کی معاشی ترقی کی شرح نمو، ملکی معیشت کا حجم، فی کس آمدن، برآمدات وغیرہ شامل تھی۔ پاکستان کو اس وقت بنگلہ دیش پر کافی سبقت حاصل تھی۔ تاہم گزشتہ 2 اشروں میں بنگلہ دیش میں ہونے والی اقتصادی ترقی کی وجہ سے آزادی کے 52 برس بعد بنگلہ دیش کے معاشی اشاریے پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ 52 برس میں معاشی شعبے میں پاکستان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنی بیرونی تجارت کو جہاں ایک جانب بڑھایا تو دوسری جانب وہاں غربت کی شرح میں بھی کمی دیکھی گئی، جبکہ خواتین کی معاشی شعبے میں ترقی پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی سال سے سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی، امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے ایک جانب صنعتی ترقی کا پہیہ تھم گیا تو دوسری جانب ملک نے بیرونی تجارت، جی ڈی پی گروتھ، فی کس آمدن اور غربت کے شعبے میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاشی صورتحال کا 52 برس بعد موازنہ کیا جائے تو بنگلہ دیش کچھ شعبوں میں پاکستان سے کافی آگے نکل چکا ہے، جس میں خاص کر گارمنٹس برآمدات کا شعبہ ہے، جس میں اس وقت بنگلہ دیش دنیا میں چین کے بعد سب سے زیادہ برآمدات والا ملک بن چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا شمار گارمنٹس ایکسپورٹ کے پہلے 5 بڑے ممالک میں بھی نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش کی گارمنٹس برآمدات کی کامیابی اس لیے بھی حیران کن ہے کہ وہاں پر کپاس کی پیداوار نہیں ہوتی، تاہم پاکستان کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا ملک ہونے کے باوجود گارمنٹس کی برآمدات میں بنگلہ دیش سے اس وقت بہت پیچھے ہے۔ 52 برس بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کے لیے جی ڈی پی، فی کس آمدنی، بیرونی تجارت اور غربت کے شعبوں میں دونوں ملکوں کا موازنہ دونوں ملکوں کے سرکاری اداروں اور عالمی بینک کے جاری کردہ داد و شمار پر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 16 دسمبر 1971 کو اپنے قیام کے بعد پہلے سال یعنی 1972 میں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کی شرح -13% ریکارڈ کی گئی۔ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق اسی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار تقریباً 1% تھی۔ جنگ کی وجہ سے دونوں خطوں کی معیشت تباہ حال تھی، تاہم پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار اگلے سال 7%، جبکہ بنگلہ دیش کی منفی ہی رہی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا مالی سال ہر سال 1 جولائی کو شروع ہوتا ہے اور اگلے سال 30 جون کو ختم ہوتا ہے۔ 52 برس کے بعد 30 جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال میں اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 1% سے بھی کم یعنی 0.29% رہی۔ دوسری جانب اس مالی سال میں بنگلہ دیش اکنامک ریویو کے مطابق بنگلہ دیش کی معیشت کی ترقی کی شرح 6% رہی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کی رفتار مسلسل 12 سے 13 سال سے 6% سے زائد پر ترقی کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی معاشی ترقی گزشتہ 10 سے 12 سال میں 3 سے 4% کے درمیان رہی، جس میں 2 سال تو یہ 1% سے بھی کم رہی۔ اس وقت بنگلہ دیش کی معیشت کا حجم 454 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت کا حجم 340 ارب ڈالر ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں معیشت کے استاد عدیل ملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بنگلہ دیش کی معیشت کی شرح نمو 1990 میں 0.2% تھی، جس میں اس سال کے بعد بہتری شروع ہوئی اور اس میں ہر سال اضافہ ہوا جو 2022 تک 6% کی سطح تک پہنچ گئی۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश में फीकस आमदन में भी गुज़श्ता 52 बरस में बहुत ज्यादा फर्क आया। आलमी बैंक के दादोशुमार के मुताबिक बांग्लादेश की फीकस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की फीकस आमदनी $150 थी। बांग्लादेश की फीकस आमदनी का ग्राफ मुसलसल ऊपर गया, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी का ग्राफ इस सिलसिले में ऊपर नीचे होता रहा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तानियों की फीकस आमदनी $1,568 रही। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक इसके शहरियों की फीकस आमदनी $2,687 रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैरूनी तिजारत के शोबों में कारकर्दगी भी गुज़श्ता 52 बरस में बहुत ज्यादा तब्दील हुई। आलमी बैंक के मुताबिक 1972 में बांग्लादेश की बरामदात $35 करोड़ थी, जबकि इस साल पाकिस्तान की बरामदात बांग्लादेश के मुकाबले में तकरीबन दुगनी थी, जो उस वक्त 67 करोड़ थी। ताहम 52 बरस में बांग्लादेश की बरामदात की शोबे में तरक्की हैरान कुन रही, खासकर गुज़श्ता 20 बरस में इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा रही। बांग्लादेश की बरामदात गुज़श्ता माली साल में मसनूआत और खिदमात के शोबे में $64 अरब रही, जिनमें $55 अरब की मसनूआत और $9 अरब की खिदमात बरामद की गई। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की गुज़श्ता माली साल में मजमूई बरामदात $35 अरब रही, जिनमें $27 अरब की मसनूआत और $8 अरब की बरामदात खिदमात बरामद की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुर्बत की सतह का मुवाजना किया जाए तो गुज़श्ता 52 बरस में इसमें तब्दीली देखी गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बांग्लादेश में गुर्बत की सतह 2016 में 13.47% थी और इसकी शरह 2022 में 10.44% तक गिर गई। आलमी बैंक के दादोशुमार के मुताबिक सन 2000 में बांग्लादेश में गुर्बत की सतह 49% थी, ताहम 2 दहाइयों में इसकी शरह में काफी कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल में गुर्बत की शरह 39.4% तक पहुंच चुकी है, जबकि 2018 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 22% थी। मौजूदा सदी के शुरू से लेकर अब तक बांग्लादेश की पाकिस्तान पर मुआशी मैदान में सबकत की वजूहात के बारे में जब माहिरीन इक़्तिसादियात से पूछा गया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुईशत के उस्ताद अदील मलिक ने कहा, अगर मौजूदा सदी में बांग्लादेश की तरक्की और पाकिस्तान के पीछे रह जाने की वजूहात का जायजा लिया जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो दोनों मुबालक में मौजूद इशराफिया की सोच और विजन का फर्क है। उन्होंने इसकी वजाहत करते हुए बताया कि बांग्लादेश में इशराफिया हो चाहे इनकी सियासी जमातें और बिजनेसमैन, इनका एक नुक्ते पर इत्फाक है कि हमने मुल्क में इंडस्ट्री को फरोग देकर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में इनके यहाँ वजीर आजम से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स यकसू हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में सियासी, फौजी और सिविल इशराफिया का सारा जोर रियल स्टेट के शोबे पर है और हर शख्स इसमें काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में बेपनाह बैरूनी पैसा आया, लेकिन सारा रियल स्टेट की नजर हो गया और इसी दौरान बांग्लादेश ने पैदावारी शोबे की तरफ तवज्जो दी और हमसे आगे निकल गया। अदील मलिक ने कहा कि बांग्लादेश में इशराफिया का मुफाद इंडस्ट्री से वाबस्ता है और पाकिस्तान में इशराफिया का मुफाद रियल स्टेट से है और यही सबसे बड़ा फर्क है जिसने दोनों मुल्कों में गुज़श्ता 20 वर्ष में मुख्तलिफ मुआशी सूरत हाल को पैदा किया। उन्होंने कहा कि दूसरी एक वजह जो बांग्लादेश को पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में नुमाया करती है वो ये है कि वहां एक तो लैंड रिफॉर्म्स करके जिम्मेदारी निजाम को खत्म कर दिया गया और दूसरा वहां पर इंडिया की तरह जात पात का निजाम नहीं है। वहां एक फैक्ट्री के मालिक से लेकर इसके मजदूर का समाजी रुतबा बराबर है और वहां अगर कल कोई मजदूर तरक्की करके फैक्ट्री लगा ले तो उसके लिए मौके मौजूद हैं। अदील के मुताबिक बांग्लादेश में तालीम का निजाम यूनिवर्सलाइज कर दिया गया और वहां हर एक को तालीम तक रसाई हासिल है। इसलिए आज हालात ये है पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि बांग्लादेश में ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 72,000 के लगभग है। अदील ने कहा कि सबसे बढ़कर बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम और अमन-ओ-मान की बेहतर सूरत हाल है जिसकी वजह से वहां मईशत की ग्रोथ मुमकिन हुई।
जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुसलसल 3-4 दहाइयों से सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी और अमन अमान के मसाइल का शिकार है, जिसने मईशत को बुरी तरह बिठा दिया और पाकिस्तान में पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान रहा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में माहिर मईशत डॉक्टर हिफ्सा हिना ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत से चैलेंज रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला एक्सचेंज रेट का है, जिसे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की गई और जिसने पाकिस्तान के बरामदी शोबे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इसी तरह मुल्क में इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए टैरिफ बहुत ज्यादा रखे गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए तैयार ना हो सकी। मकामी खपत पर इंसार किया, जिसकी वजह से बरामदात का शोबा तरक्की ना कर सका। दूसरी जानब पाकिस्तान में एनर्जी की कीमतों ने इंडस्ट्री पर बेपनाह मनफी असरात मुरतब किए, जिसकी बुनियाद पर ये इस काबिल ना हो सकी कि दुनिया में मुसाबकती दौड़ में आगे बढ़ सके। गुज़श्ता 2 दहाइयों में बांग्लादेश ने जिस शोबे में बेपनाह तरक्की से सबको हैरान किया है, वो उसकी गारमेंट्स के शोबे में तरक्की है। बांग्लादेश ने गुज़श्ता साल दुनिया में 42 अरब डॉलर की गारमेंट्स एक्सपोर्ट की, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की गारमेंट्स बरामदात 10 अरब डॉलर रही। गारमेंट्स के शोबे में बांग्लादेश दुनिया में चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है। प्रोफेसर अदील के मुताबिक सिर्फ गारमेंट्स के शोबे में बांग्लादेश में 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। दुनिया के दूसरे मुल्कों के अलावा पाकिस्तान से भी बांग्लादेश में सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान में सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक गारमेंट्स शोबे के सनतकार फरख इकबाल का भी बांग्लादेश में काम है और इनका एक ऑफिस वहां काम कर रहा है। बीबीसी से अपने तजर्बात शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी वजह तो वहां पर अमनो माल की बेहतर सूरत हाल है कि वो पिस्तौल का लाइसेंस भी किसी को नहीं देते। दूसरा, वहां पर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है, जिसकी एक मिसाल है कि अगर वहां कोई बैरूनी सरमायाकार आए तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उन्होंने अपने तजर्बात की बुनियाद पर बताया कि वहां पर लेबर बहुत सस्ती है और इनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और गैस और बिजली की फराहमी मुसलसल है और सस्ती है। सिंध से बांग्लादेश में गारमेंट्स शोबे में सरमायाकारी करने वाले इदरान जफर ने बताया कि बांग्लादेश में सनत की सूरतकारी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि वहां बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन 2 दिन में मिल जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में अव्वल तो इस वक्त गैस का कनेक्शन मिलता ही नहीं और बिजली का कनेक्शन लेने में 2 साल लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बैठकर अपनी फैक्ट्री का काम बांग्लादेश में ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं और उन्हें अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में गारमेंट सेक्टर के बरामद कुनिंदगान की तंजीम के साबिक चेयरमैन एजाज खोखर ने बताया कि बांग्लादेश के गारमेंट्स सेक्टर में आगे निकलने की एक वजह तो इनकी प्रोडक्ट लाइन है। वे शोबे में बहुत ज्यादा मसनूआत बना रहे हैं, जबकि हम सिर्फ अभी तक 4-5 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में शर्ट्स, खासकर लेडीज शर्ट्स बहुत कम बनती हैं, जबकि बांग्लादेश लेडीज अंडर गारमेंट्स में बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फर्क इनकी वर्कफोर्स डाल रही है। बांग्लादेश में गारमेंट्स शोबे की वर्कफोर्स में 80% खवातीन है, जबकि मर्दों की तादाद 20% है। उन्होंने बताया कि खवातीन 8 घंटे की शिफ्ट में 7.5 घंटे काम करती हैं, जबकि दूसरी जानब मर्दों में ये शरह 5 से 6 घंटे के दरमियान है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गारमेंट्स शोबे की वर्कफोर्स में खवातीन सिर्फ 10% है। उसके अलावा बांग्लादेश में गारमेंट्स के बड़े कारखानों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये 30 से 40% के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 7% है। पाकिस्तान में खवातीन की सनती शोबे में काम करने के बारे में डॉक्टर हिफ्सा ने कहा कि बांग्लादेश की कहानी बहुत मुतासरकुन है, ताहम पाकिस्तान में इसके उल्ट होता है। खवातीन को सरकार की जानिब से किसी टेक्निकल तालीम की फराहमी की बजाय उन्हें चंद हजार रुपए दे दिए जाते हैं, जो हर हुकूमत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए देती है। तो ऐसी सूरत हाल में खवातीन कैसे पैदावारी निज़ाम का हिस्सा बन पाएंगी। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।